آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ کورونا وائرس کے ٹیکے اب بھارت میں جلد ہو جائیں گے دستیاب۔ کوویکسین اور کووڈ شیلڈ کو ڈی جی سی آئی نے دی منظوری۔ وزیراعظم نے کہا کووڈ کے خلاف جنگ میں ملک اب ہوگا مستحکم، صحت مند اور کووڈ سے پاک بھارت کی تعمیر کی امید۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ افراد کو ٹیکے دینے کا مرکز کا منصوبہ۔ ہرش وردھن نے کہا ملک بھر میں مفت فراہم کی جائیں گے ٹیکے۔ صحت مند بھارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے ڈاکٹرز کو مرکزی وزیر کشن ریڈی کا مشورہ۔ بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور۔ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت نے سرحد پر کیا فوجی ٹھکانوں کا دورہ۔ مشکل حالات میں خدمات انجام دینے پر فوجیوں کی ستائش۔ اور اب تفصیل۔ بھارت میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 2 ٹیکے جلد ہی دستیاب ہوں گے۔ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈی جی سی آئی نے کووڈ شیلڈ اور کوویکسین کے ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے۔ حیدرآباد کی کمپنی بھارت بایو ٹیک کے کوویکسین اور پونے کے سیرم انسٹی ٹیوٹ کے ٹیکے کووڈ شیلڈ کے استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈی جی سی آئی جی سومنی نے کہا کہ دونوں کمپنیز نے اپنے تجربات سے متعلق ضروری مواد فراہم کیا ہے اور دونوں کو محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکے 100% محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ٹیکے کے بارے میں معمولی خدشہ بھی ہو تو ہم ایسی کسی چیز کو منظوری نہیں دیتے۔ کووڈ شیلڈ نامی ٹیکہ آکسفورڈ اور اسٹرازینکا نے مشترکہ طور پر بنایا ہے۔ پونے کا سیرم انسٹی ٹیوٹ ملک میں اس ٹیکے کی پیداوار کرے گا۔ کوویکسین مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کی کمپنی بھارت بایو ٹیک نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کے تعاون سے یہ ٹیکہ بنایا ہے۔ امریکہ کی فائزر کمپنی نے گزشتہ مہینے ڈی جی سی آئی کو اپنے ٹیکے کے استعمال کی اجازت کے لیے درخواست دی تھی، تاہم اس ادارے نے سیرم انسٹی ٹیوٹ اور بھارت بایو ٹیک کی درخواستوں کو ہی قبول کیا۔ And National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں کورونا وائرس کے 2 ٹیکوں کے استعمال کے لیے دی گئی منظوری پر اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ڈی سی جی آئی کی جانب سے کووڈ شیلڈ اور کوویکسین کو منظوری دیے جانے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بات پر ہر ہندوستانی کو فخر ہوگا کہ یہ دونوں ٹیکے بھارت میں تیار کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سائنٹیفک برادری آتم نربھر بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ڈی سی جی آئی کی جانب سے سیرم انسٹی ٹیوٹ اور بھارت بایو ٹیک کے ٹیکوں کی منظوری ملک کو صحت مند اور کووڈ سے پاک بنانے کی سمت سفر میں تیزی لائے گی۔ انہوں نے سائنسدانوں اور محققین کو مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے ڈاکٹرز، طبی عملے، سائنسدانوں، پولیس ملازمین، صفائی کرمچاری اور تمام کورونا واریئرز سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ انہوں نے مشکل حالات میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔
मरकजी हुकूमत पहले मरहले में 30 करोड़ अफराद को टीका देने का मंसूबा बना रही है। सेहत आमा के शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे 1 करोड़ मुलाजिमीन के अलावा 2 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हंगामी शोबों में काम कर रहे मुलाजिमीन और 50 साल से ज़्यादा उम्र के 27 करोड़ अफराद को टीके दिए जाने का मंसूबा है। टीके की सरबराही और दीगर इंतजाम की जांच के लिए तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में कल ड्राई रन का अहतमाम किया गया। इस दौरान मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि मुल्क भर में आवाम को ये टीके मुफ्त दिए जाएंगे। सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने हैदराबाद में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की 26वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर बच्चों की चंद मशहूर डॉक्टर्स को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि सेहतमंद भारत की तामीर में डॉक्टर्स का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों की शरह अमवात ज़्यादा है और इसे कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कोविड से निपटने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है इसकी सताइश पूरी दुनिया में की जा रही है। కన్సల్ట్ అనేటువంటి సంస్థ ఇటీవల కోవిడ్ సందర్భంగా ఆయా దేశాలు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు విషయంలో పరిశోధన చేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున గత 3 నెలలుగా ఈ సంస్థ పరిశోధన చేసి 2 రోజుల క్రితమే తన నివేదికను విడుదల చేయడం జరిగింది। అందులో మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రపంచంలోనే కోవిడ్ విషయంలో ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రధానమంత్రిగా అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మరి రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने तयक़ुन दिया कि असातिज़ा के मसाइल जल्द ही हल किए जाएंगे। उन्होंने प्रगति भवन में TUTF की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तरक्की, PRC, तबादलों, रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा, स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और दीगर उमूर पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए अज़्म की पाबंद है। तेलंगाना में देहातों का नक्शा बदल रहा है। दही इलाके तरक्की की राह पर गामजन हैं। अब तक शहरी इलाकों में ही पार्क बनाए जाते थे, लेकिन अब देहातों में भी पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। राजन्ना सिलसिला ज़िला इसमें सबसे आगे है। इस बारे में पेश है दूरदर्शन की ये खुसूसी रिपोर्ट। देहातों में इन दिनों हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। साफ सुथरे माहौल में दही अवाम कुदरती खूबसूरती से लुफ्त अंदोज हो रही हैं। यहाँ कुदरती पार्क कायम किए जा रहे हैं। हुकूमत के पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत पार्कों का क़याम अमल में आ रहा है। इस काम को दही रोजगार स्कीम से मरबूत किया गया है। राजन्ना सिलसिला ज़िले में जुमला 255 ग्राम पंचायत हैं और इनमें से मजीद 12 देहात जुड़े हुए हैं। इस तरह ज़िले में जुमला 267 देहात हैं। DRDE के ओहदेदार कोटलिया रेड्डी ने बताया कि 266 देहातों में पार्क्स का क़याम अमल में आया है। హ్యాబిటేషన్స్ అండ్ జీపీస్లో ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాము। దాంట్లో 260 మనకు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి। ఇంకొక 6 పురోగతిలో ఉన్నాయి। అవి కూడా ఖచ్చితంగా ఈ 3-4 డేస్లో కంప్లీట్ అయితే ఒక్క దగ్గర మనకు ల్యాండ్ లేదు, బట్ అదర్వైజ్ మనం మ్యాక్సిమం 266కు 260 కంప్లీట్ చేసుకున్నాము। ఇంకొక 6 కూడా ఈ 3-4 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటాము। हर गांव में 1 एकड़ अराजी हासिल करते हुए पार्क कायम किया गया है। हर पार्क में 4000 पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दही इलाकों को सड़कों की सहूलत फराहम की जा रही है। इससे देहातों के लिए आमदोरफ्त आसान हो गई है। आदिलाबाद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अमलावरी के बारे में पेश है दूरदर्शन की ये खास रिपोर्ट। आदिलाबाद जंगलाती जिले के तौर पर जाना जाता है। यहाँ कबायली देहातों की तादाद ज़्यादा है।
इन इलाकों में बेहतर सड़कें न होने की वजह से आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ताहम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दूर दराज के कबायली देहातों तक सड़कें बिछाई गई हैं। इस स्कीम से आवाम की मुश्किलात दूर हुई हैं। इससे कबल सड़कें न होने की वजह से दही आवाम को खुसूसन किसानों, तलबा, खवातीन और मुलाजिमीन को मंडल हेडक्वार्टर्स तक जाने मुश्किलात पेश आती थीं। बारिश के मौसम में नदियाँ और नाले लबरेज होने से आमदरफ्त थम जाती थीं। आदिलाबाद ज़िले के चौड़ा मंडल में इस स्कीम के तहत तकरीबन 8 किलोमीटर तवील सड़कें बिछाई गईं। इसके नतीजे में दूर दराज के देहातों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल हुई है। कबायली अवाम इस तब्दीली पर खुश हैं। ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజనలో 4 కోట్ల రూపాయలతో నేషనల్ హైవే నుంచి గేర్జమ్రకు వయా ముక్రా 7 కిలోమీటర్న్నర बीटी रोड मंजूరైంది। पंचायत राज ई महावीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत सड़कों की तामीर के लिए मेयारी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అంటే ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులకు అభివృద్ధి చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంపొందించి ఇప్పుడు రైతులు కానీ ఎవరైనా వ్యాపారులు నియర్ బై పట్టణాలకు వెళ్ళి అమ్ముకోవడానికి కానీ లేదా గ్రామీణ ప్రజలు వైద్య సౌకర్యం కల్పించడానికి మంచి హాస్పిటల్స్ ఉన్న అటువంటి విలేజ్కు కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। कोरोना वायरस के टीके अब भारत में जल्द हो जाएंगे दस्तयाब। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को DGCI ने दी मंजूरी। वजीर आजम ने कहा, कोविड के खिलाफ जंग में मुल्क अब होगा मुस्तहकम। सेहतमंद और कोविड से पाक भारत की तामीर की उम्मीद। पहले मरहले में 30 करोड़ अफराद को टीके देने का मरकज का मंसूबा। हर्षवर्धन ने कहा, मुल्क भर में मुफ्त फराहम किए जाएंगे टीके। सेहतमंद भारत की तामीर के लिए काम करने डॉक्टर्स को मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मशवरा। बच्चों की शरामवात को कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने सरहद पर किया फौजी ठिकानों का दौरा। मुश्किल हालात में खिदमात अंजाम देने पर फौजियों की सताइश।